नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मिलिंद धारवाडकर आरोग्य मंदिर और उत्सव इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ में जुड़े हैं SES LS रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स सांता क्रूज से। और इस कॉलेज के सभी जो हमारे शिक्षकगण हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का मैं इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। We at Arogya Mandir and Utsav Institute really thank you for your association, and we look forward to many more such events together in future. Now I would like to request Dr. A. Kulkarni to start the proceedings. Dr. Kulkarni. Hello, good morning everyone. Dr. Akshata Kulkarni, the NSS and NCC in charge of LS Raheja College of Arts and Commerce, extend my warm welcome to our principal, Dr. Devjit Sarkar, IQAC coordinator, Dr. Anupama Nirurkar, NSS program officer, Shri Ramsagar Yadav, Gymkhana in charge, Shri Rushikesh Vandrekar, sports director, Dipali Patil, and the entire team of Arogya Mandir and Utsav Institute of Badlapur, including the founder member Shri Vijay Kukreja ji, Mrs. Sarika Kukreja, the co-founder, Miss Nikita Shelar, and Shri Milind Narwadkar, and all participants. For celebrating the International Yoga Day this year on 21st June 2020, we, the NSS Unit B09 of LS Raheja College and the Gymkhana Committee, along with IQAC, have jointly organized this 3-day webinar starting from today with Arogya Mandir, Badlapur. Now, before I request you to stand for the national anthem. We begin the national anthem. Jan मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Now you may take your seats. Now I will give you the brief introduction of our institute, LS Raheja College. The LS Raheja College, established in 1980 by Sadhana Education Society, is a premier institution in higher education affiliated with the University of Mumbai. It is recognized as Gujarati Linguistic Minority Institute. In glorious past years, LSRC has played a pivotal role in the field of arts and commerce education. Today, the college offers junior college education in arts and commerce and degree programs BCom and BA. There are other unaided programs like BCom in accounting and finance, BCom banking and insurance, BCom in financial markets, Bachelor of Management Studies, Bachelor of Science Information Technology, BMN, that is BA in Multimedia and Mass Communication, affiliated to University of Mumbai. The college also offers post-graduation program, MCom, with specialization in accountancy, management, and banking and finance, and is a PhD center also.
LS Raheja College has been accredited A grade in previous cycles of NAC and is preparing for the third cycle. The college holds 7th and 9th rank in commerce and arts, respectively, amongst top 100 colleges in India as per survey by India Today. Evolving with the dynamic industry environment, the college realized the need to provide an edge to its students to help them flourish in today's competitive scenario. Along with the degree courses, the college has also started offering several add-on courses like Certified Financial Planner, Certificate Course on Investment, online add-on courses approved by University of Mumbai. Similarly, course on digital marketing and soft skills, and English speaking course also. Request our Honorable Principal, Dr. Devjit Sarkar sir, to address Sarkar sir. Thank you, Dr. Akshata Kulkarni. Good morning to all. I'm very happy that the college, the Gymkhana committee, the NSS and the IQAC togetherly, they are organizing this 3-day yoga classes. This is to commemorate the International Yoga Day, which is on 21st June 2020. I particularly thank Arogya Mandir and Dr. Mr. V. Kukreja and Milind Dharwadkar for conducting these yoga classes, 3-day yoga classes. And I also thank all the participants without whose participation the program would not have received so much of success. So I thank all the participants for joining with us. And I also once again thank the committee, Gymkhana committee, the UP, IQAC and the NSS for organizing this 3-day yoga classes. With this, I thank everyone. Thank you very much. Thank you, Dr. Sarkar. We are really very happy that you and your organization, your college has decided to get together and associate with Arogya Mandir and Utsav Institute for this 3-day yoga workshop cum lecture series to combat COVID-19 and also to celebrate the upcoming International Yoga Day on 21st June 2020. Dr. Sarkar, I would like to now introduce Arogya Mandir and Utsav Institute. I would like to give some information about Arogya Mandir to all our participants and all our viewers. Friends, Arogya Mandir is a institute which is situated in Badlapur and is working in the field of yoga programs and yoga awareness for the last 5 years. And in these 5 years, Arogya Mandir has established its name in the field of health, and it is conducting different yoga programs. For example, yoga for heart, immune system and stress, pranayam, yoga for diabetes, yoga for back pain, power yoga, corporate yoga, PCOD and yoga, hypertension, and different programs like this. And Arogya Mandir is also conducting Shuddhi Kriya and Shuddhi Kriya programs for 3 days or 5 days. It is also conducting series of lectures in the nearby areas of Ambernath, Ulhasnagar, Murbad, and Shahpur. The founder, Dr. Vijay Kukreja, himself is an internationally certified yoga teacher, and he's also a YCB's level 2 certified yoga teacher from the government of India. He's also the head of the department of Wave Action Trust, which is working in the field of yoga. His wife, Mrs. Sarika Kukreja, is also the co-founder of this institution, and she is also an MA in Yoga Shastra, and she's also doing a diploma in naturopathy. Friends, I would like to now introduce Utsav Institute to you. Utsav Institute is also one of the leading yoga institute in Mumbai,
which is situated in Ghatkopar and is also affiliated with the world's largest yoga therapy center, which is situated in Bangalore, named Vyasa. And Professor Devang Shah, who is the founder of this institute, is also a visiting faculty in Somaiya University, and he is also a member of education board for different yoga programs for the government of Maharashtra. Friends, for this program, there are many associates who have been continuously supporting us and supporting our events throughout. And without taking their names, this program would be incomplete. So I would like to take the names of our event associates also, which includes some organizations and some educational institutes and some social institutes from Badlapur also. I would like to take the names: Little Blossom Preschool and Nursery, Miles of Smile Preschool, 365 Studio Media Company, Spanish Space Language Institute, Housing World Seva Sahkari Sanstha, Don Bosco School, Bharat College, Shri Krishna Khamkar Vidyalay, Jeevandeep College, Society Plus Housing Institute, Housing Consultants, Blossom Holidays, Ace Communications, Nature View Tours and Travels, Hridaya's Kitchen, Dream Weavers College of Hotel Management and Tourism, Kridangan, which is on another institute and involved in the field of sports, Shetes Construction, Bundela Charitable Trust, Paw Foundation, Saksam Foundation, I Love My Daughter Foundation, Suyog Mudran, who are our partners for all our digital and DTP programs. Our news media partners are Maharashtra 10 News, Sri Sambhaji Shinde, Sri Prashant Kulkarni, Advocate Madhuri Garud, and last but not the least, जिनके प्रेरणा से हम ये सब programs पिछले 5 साल से कर रहे हैं. The person from whose inspiration we are doing all these programs is our Honorable MLA of Murbad, Sri Kisan Kathureji. Friends, I would also like to inform that due to this COVID-19, we had to come to this digital platform and conduct this lecture series. Prior to this, every year we were conducting all these yoga sessions physically, going to different places and conducting these series of programs. And every year we used to have a participation of 2,000, 2,500 or 3,000, depending on the situation. But this year, due to COVID, we had to shift to this digital platform, and we are very happy to inform you all that on this digital platform, every day we are having a viewership of almost 10 to 12,000. And I'm really happy that today that SES, Sadhana Education Society's LS Raheja College of Arts and Commerce has joined with us, and they are having their own participation of all the staff, teaching and non-teaching staff, and also all the students of this college are also participating with us, and including all the institutions of and the associate institutions of Raheja College. Today our viewership will be increased by more than 5 to 6,000. So I would really like to thank Dr. Sarkar for this great initiative to join with us for this upcoming Yoga International Yoga Day, and to also on this lecture series for combating COVID-19. Friends, today's topic of the lecture series is detox and naturopathy, and I would really like to inform all our viewers that today we have a very established and very acclaimed speaker, Dr. Kaustubh Salvi. I would like to introduce Dr. Kaustubh Salvi. Dr. Kaustubh Salvi has done his diploma in naturopathy. He is also a postgraduate diploma holder in Bharatiya Sanskriti. He has also done advanced diploma in yoga from the Mumbai University, and also in acupressure and Thai massage. He is a nature cure practitioner, teacher, and chiropractor for the last 25 years. And he is also a faculty at the D.Y. Patil College of Naturopathy, and he's and in the Atmabodha Academy, Somaiya College, Shantivan, Panvel, and Arogya Mandir, Badlapur. He also conducts camps on detox through fasting therapy and instant spinal correction with chiropractic treatment and allied therapies. So friends, without taking much time, I would like to request Dr. Kaustubh Salvi to start his presentation. Namaskar. Good morning, all of you. I hope I'm audible very well. So, first of all, I want to thank Arogya Mandir and Utsav Institute for organizing this yoga initiative, and for
the colleges which have joined this to promote health and to promote this type of discipline in the students is a great initiative. So for today's lecture, I would introduce this that this is about detox. I think most of you must be aware of this word detox. Detox is detoxification. It is in short called detox, and this is about removing the toxins from the body. So the toxins are basically the poisonous substances that are accumulated and that cause disease. So that is about today's topic. So when you talk about cleaning, we know that everybody knows the importance of cleaning nowadays. You know that when you wash your hands regularly for 20 seconds, you'll be safe from the widespread disease that everybody is facing today. So hand washing is so important to prevent a virus from entering our system. Similarly, body washing can be so effective that we are going to discuss today. तो शरीर शुद्धि क्या है इसको हमको समझना है आज. Again, to make everyone understand, it is like servicing of the body. How we service our vehicles, our the things, equipment that we use to maintain it and to maintain its performance. Similarly, if you want our body to give the optimum performance, highest performance, so we have to keep it clean. We have to service it regularly. How do we service our body? Do we think about our body in that way? People generally feel we want to buy a very expensive equipment. So we read the book, how the maintenance methods in that book, and we come to know, okay, every 6 months we have to service this, or every 3 months we have to service. But we don't have something like that in our body. हमारे शरीर के साथ कोई ऐसी किताब नहीं आती है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड के जैसा, and we just go along with it. Whenever we feel diseased, we go to the doctor and we try to treat it. But now, because of the lockdown and all this situation, going out is more risky than the disease itself that we are suffering. So people are now trying to find out ways to keep ourselves healthy. So that's why we have to. This is the first way to keep ourselves healthy or prevent disease is by cleaning our body. The cleanliness of the body is paramount for prevention of any disease and for promoting our health. Promotion of the health is also an integral part to prevent any disease and to get optimum out of your body. So how do we do this? So the body has its inbuilt mechanism to clean. We all know in the morning we go for the washroom, we clear our bowels, the urination happens throughout the day, there's sweating. So there are mechanisms which are cleaning the body. But what happens, unfortunately, is toxification of the body is happening rapidly. So that rapid toxification actually disturbs this cleaning process, or the cleaning process is not enough or adequate. यानी शरीर में हमारे दोष इतना जा रहे हैं कि हमारे ये जो फिल्टर करने की कैपेसिटी है हमारे लंग्स में है, हमारे इंटेस्टाइन्स में है, हमारे स्किन में, वो काफी नहीं होती. तो इतने टॉक्सिन्स कैसे जाते हैं? तो वी ऑल नो. So this is what the next slide shows, that what is detox. It is the way of removing the toxins, and we are equipped with this detoxification process. So you can read the slide. Liver has the capacity. It is the master cleanser of the body, and it cleans the blood and everything and prevents toxic accumulation. Colon, as we know, clears the bowels, and the kidneys that filters the blood and removes the liquid waste. But the problem is the last point. We are constantly exposed to environmental pollution, which is so high. Preservative in the food. Now we know that we are getting all kinds of things that are preserved because we have to eat whatever we get. That are so high. Pesticides, in farming they are used, and all this becomes our system.
So what is and then our lifestyle. We have all the things at our disposal so that we don't move. रिमोट से टीवी चलाते हैं हम लोग, घर के बाहर निकलते तो गाड़ी में जाते हैं, टू व्हीलर पे जाते हैं, मूवमेंट की जरूरत कम होती है। तो शरीर को मदद करने वाले जो हमारे अंदर के स्ट्रक्चर से, उनको मूवमेंट से वो शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालते हैं, वो नहीं हो रहा है। तो दिस इज अ मेजर हेल्थ हैजार्ड टू आवर बॉडी दैट दिस एक्यूमुलेट्स। दीज ऑर्गन्स दे गेट टायर्ड एंड फटीग, वो थक जाते हैं। ये शरीर को कितना साफ करेंगे, और वो थक जाते हैं तभी ये शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। So, and now you know that it is difficult to access medical facilities. So, what is important is you have to do a detox at home. So, what are the signals? आपको कैसे पता चलेगा ये सब हो रहा है शरीर के अंदर? How do you know that toxins are accumulating? Some people feel that okay, we are doing regular cleaning. कुछ लोग पेट साफ करने के लिए कुछ खाते हैं, कोई पर्गेटिव खाते हैं, उनको लगता है पेट साफ हो गया तो सब ठीक है. A lot of people drink a lot of water also. They know that okay, drinking a lot of water is good. They drink 1.5 liter of water in the morning and they feel urine is clear, so my body is clean. So, but still there are certain things that don't flush out easily like that. So how do you know that the body is accumulated with dirt? So you start getting fatigue. ये common problem है लोगों का. हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो पहला चीज बोलते हैं, बाकी सब कुछ बोलते हैं, हमको थकान लगती है, सुबह उठने के बाद एनर्जी नहीं लगती. तो this is the first indication. Then headaches. Whenever the blood gets impure, there will be first indication will be headache. तो सर दर्द होने लगता है. तो हम लोग क्या करते हैं, we take a crocin or a aspirin or whatever to just release the pain or relieve from the pain. But this is the first indication that toxicity is building up. ब्लड के अंदर एसिड बढ़ने लगा तो सबसे सेंसिटिव होता है हमारे ब्रेन के सेल्स, वो दर्द देना शुरू करते हैं. That they show that okay, body is trying to now impurity is building up. Weight gain, obesity. जो शरीर बाहर नहीं फेंक सकता है वो शरीर क्या करता है, स्किन के नीचे की लेयर में, फैट की लेयर में एक्यूमुलेट करने लगता है. So that you know that some part of the body becomes obese. कहीं कहीं वो accumulate होने लगता है because the body does not want to accumulate this dirt in very important organs. So ये organs में accumulate करता है, belly fat होता है, ग्लासेस होने लगते हैं, ब्लोटिंग होने लगता है, बैड ब्रेथ, मूड स्विंग्स, हमको किसी में मजा नहीं आता है. लोग बोलते हैं हमको बोर हो रहा है, बच्चे तो पर्टिकुलरली बोलते हैं वी गेटिंग बोर्ड बिकॉज़ दे डोंट बिकॉज़ द बॉडी इज टॉक्सिक, एवरीथिंग अराउंड फील्स, उसमें कुछ मजा नहीं आता. सो दिस मूड स्विंग्स हैपन एंड देन स्ट्रेस स्टार्ट्स बिल्डिंग अप. व्हेन वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद आवर बॉडी, देन वेरी स्मॉल थिंग्स गिव अस स्ट्रेस. थोड़ा भी हम लोग सहन नहीं कर सकते, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको डिस्टर्ब होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, खराब लगता है, बुरा लगता है. You recently heard what happened with due to depression, we lost a very good actor to depression. All that happens because the body cannot cope up or handle these small things because it is already weakened inside. Affects our immunity. Everybody knows importance of immunity. हमको पता है कि हम लोग, हमारी immunity अच्छी रहेगी तो वायरस बैक्टीरिया से हम लोग लड़ सकते हैं. तो the body is fighting itself for it is already tired to handle the waste inside. जो विजातीय द्रव्य है उसको बाहर निकालने में उनको शक्ति नहीं है, तो इम्यूनिटी और कम हो जाती है. इम्यूनिटी, इम्यून स्ट्रेंथ, वो शक्ति है एक जो हमारे शरीर में से किसी बैक्टीरिया वायरस को फाइट कर सकती है. वो शक्ति हमारी कम है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वी आर एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शन. एंड दिस ऑल हैपेंस एंड देन टॉक्सिक बिल्डअप हैपेंस. जैसे हमने बताया कि शरीर के अगर स्किन के नीचे नहीं जमा हो गया, जॉइंट्स में नहीं जमा हो गया, वाइटल ऑर्गन्स में जमा होने लगता है. एंड देन ब्लॉक्स इन द हार्ट हैपेंस, स्टोन्स इन द किडनी हैपन, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने लगते हैं, लंग्स में कफ जमा होने लगता है. ऑल दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स देन स्टार्ट टॉक्सिक बिल्डअप, यानी ये सब जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ डिसीज. एंड देन सडनली वी कम टू नो, अरे मेरे हार्ट में इतना ब्लॉक हो गया है. तो ये कभी हो गया, तो ये 10-15 साल से टॉक्सिक बिल्डअप होने लगा. नेक्स्ट स्लाइड. So I think you went ahead. And back. So benefits of a detox can give. So when we do a detox, इस शरीर को हम लोग शुद्धि करते हैं, तो शरीर शुद्धि से क्या होता है हम लोग समझेंगे, फिर कैसे करेंगे शुद्धि समझेंगे. तो energy boost happens because the body is clear. We help the body to throw out its toxins. Then immune system is improved.
aids in internal organs की शक्ति को बढ़ाता है, improve thinking and clarity of mind. सबसे important ये बात है कि जब भी शरीर साफ होता है तो हमको, जैसे आपको पता है कि एसिडिटी है तो इरिटेशन होता है, आदमी सोच नहीं सकता है, he will react to situations. So this improved thinking and clarity happens when the body is clean. So people think that psychology is different and physiology is different, या physical conditions are different. तो ये ऐसा नहीं है. जब भी शरीर के अंदर एसिड जमा हो जाएगा तो माइंड इरिटेट होगा. तो बॉडी एंड माइंड इज वन, इट इज कनेक्टेड, इट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, माइंड इज नॉट सेपरेट. So what happens is, when the body is clean, we can think clearly. So slow signs of aging, जिसको aging को रोकना है, for them also detox is important, and promoting healthy skin and hair. I think all the women and girls will be inspired by this, and promotes mindful eating. So what to eat, ये पता चलता है. Bad food that gives us toxicity, हम लोग ऑटोमेटिक अवॉइड करने लगेंगे जब भी हमारा शरीर शुद्ध होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा. नेक्स्ट. सो कॉन्ट्राडिक्शन, यानी ये हम लोग जब भी फास्टिंग देते हैं, शरीर शुद्धि के लिए सबसे जो सिंपल टेक्निक है वो है फास्टिंग, और कुछ नहीं करना है. यानी अब हम लोग को लगेगा इतना सब करना है, so many benefits, so such a complex procedure it would be. We just know that for treating one disease we have to go to a doctor, understand the whole do a lot of tests and so many things. Then in the process of detoxification कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कोई कितना कॉम्प्लेक्स नहीं. फिर इसमें फास्टिंग करके एक सिंपल टेक्निक, लेकिन ये फास्टिंग को कौन नहीं कर सकता है समझना है हमको. बहुत ही कमजोरी है. who cannot they cannot get up, they cannot even walk, so weak patients cannot do. low HB count, जिनके अंदर खून कम है, वो लोग नहीं कर सकते. then cardiac conditions है, जिनके हार्ट बहुत कमजोर है, वो लोग नहीं कर सकते. हालांकि इनके लिए ही जरूरी है, लेकिन इनको अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर सुपरविजन, अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस इन द हॉस्पिटल वी कैन डू दिस ट्रीटमेंट. बहुत हाई बीपी है, उनके लिए भी फास्टिंग जरूरी है, लेकिन उनको भी कंट्रोल कंडीशंस में करना पड़ेगा. पाल्पिटेशन जिसको बहुत बड़ा है, तो ऑलरेडी हार्ट अगर बहुत फास्ट चल रहा है तो नहीं कर सकते. इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्जरी हुआ है तो रिकवरी के लिए कुछ टाइम लगेगा. एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये जो फास्टिंग का ये है प्रोग्राम, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में नहीं करना है. ओके. सो व्हेन वी हैव डिसाइडेड, व्हेन वी गो अबाउट दिस, यानी मैं खास करके विजय भाई को इसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगा कि जब भी ये लॉकडाउन शुरू हुआ तभी उन्होंने बताया कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हमको योग तो कराना है. तो ही from our circle, he was Arogya Mandir was the first institute to start online programs. And then I realized, okay, what we can do. So he said, okay, we can give dietary consultations over Zoom. आप कुछ लेक्चर दीजिए, कुछ बातें कीजिए. So I started talking over Zoom. Till that time I did not know how to use Zoom. I was difficult to even speak because I am not seeing the faces of the people. तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन तभी हमने शुरू किया. And slowly we conducted the first detox program online. We never thought before, because detox के लिए हमको लोगों को हमारे सेंटर में बुलाना पड़ता था, वहाँ उनको एडमिट करना पड़ता था, फिर डिटॉक्स प्रोग्राम होता था, लोगों को छुट्टी लेके आना पड़ता था. लेकिन आरोग्य मंदिर was a pioneer in conducting this, and we first conducted a detox program online. So what we did is we have a integrated approach. यानी हमको पता है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा कि जब भी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ सर्जरी भी आजकल एक दिन में डे ट्रीटमेंट में होने लगा. तो जैसे कैटरेक्ट का सर्जरी होता है, तो भी पेशेंट एडमिट हुआ 2-3 घंटे में सर्जरी करके वो फ्री होता है, उनको घर में भी भेज देते हैं. तो वैसे डे केयर में जैसे ट्रीटमेंट होने लगा, तो लोगों को पता चला कि हम लोग को लंबे समय तक रुकना पॉसिबल नहीं है. तो नेचर क्योर के डिटॉक्स को भी हमने क्या किया, इसको फास्ट कैसे कर सकते. लोगों के पास वक्त कम है, लोगों को अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वक्त का. तो हम लोगने इंटीग्रेटेड अप्रोच किया. ये आरोग्य मंदिर के जो योग का जो एक्सपर्टीज है उसके जरिए हो सका. हमने नेचर क्योर और योग को जोड़कर ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से किया. So that is the unique feature of this detox program what we have started in Arogya Mandir. Then we have highly experienced team, as you know about the experience of all the members of the team hold.
तो इसकी वजह से क्या होता है कि वी कैन नो different conditions what our problems can occur, and we can prevent that with the help of the experience. Then there is a medical practitioner also on the panel who can understand medically pathology report देखकर पता चलेगा कि इनको अगर दवा शुरू है तो डायबिटीज की दवाई अगर देनी है तो कितनी देनी है, जब भी हम लोग फास्टिंग लेते हैं। फिर इसमें एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया क्योंकि इतने साल से डिटॉक्स प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है और पेशेंट्स को कैसे फायदा होता है, उसमें अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा पेशेंट्स का, तो इसकी वजह से हम लोग प्रोग्राम को और रिफाइन करके अच्छा कर सके। एंड द बेस्ट बेनिफिट, आई थिंक इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ड्यू टू द लॉकडाउन, दैट वी कैन डू इट एट द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स। घर बैठ के अगर हम लोग अभी ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये डिटॉक्स भी हो सकता है क्या? तो ये आरोग्य मंदिर के इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग कर सके कि वी कैन रीच एट द पेशेंट्स होम एट द कंफर्ट ऑफ देयर होम, एंड वी कुड डू। ऐसा होता था कि लोग घर से निकल के हमारे सेंटर में आएंगे, नई जगह पे एडजस्ट होने को उनको टाइम लगेगा, फिर उनको अच्छी से नींद आने लगेगी, फिर ये डिटॉक्स का फायदा होता है। तो ये अभी क्या है, वो अपने घर में अपने रूम में है, अपने बेड पे वो सो रहे हैं डिटॉक्स के दरमियान, क्योंकि इसको बोलते हैं रेस्ट क्योर। अच्छी तरह से नींद आना बहुत जरूरी होती है इस डिटॉक्स के प्रोग्राम में। तो वो उनके घर पे आना शुरू हुआ और हम लोग का ये प्रोग्राम और अच्छी तरह से घर के कंफर्ट में होने लगा। तो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन, ये जो डिटॉक्स प्रोग्राम होता है क्या होता है, ये बहुत ध्यान से आप देखिए कि इसमें एक चीज करना होता है हमारा, हम बाहर की जगत में रहते हैं, योग में जो योग प्रैक्टिस करें उनको सब पता है कि वी हैव टू गो इनवर्ड। हमारे शरीर को क्या जरूरत है, हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन थक चुके हैं, हमारे शरीर में कितनी विजातीय द्रव्य है, क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो देखने के लिए हमको अंदर झांकना है। वो हम लोगों को बताते हैं कि आपका योगा का जो भी टीचिंग है उसको आपको इस्तेमाल करना है इस प्रोग्राम में। फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि सुखकारक ही हितकारक है। ये आप लिख सकते हो, जो जिसके पास पैड है और पेन है वो लिखिए कि जो हमारा थंब रूल है, जो हमारा सिद्धांत है, वो है सुखकारक ही हितकारक। शरीर को जिस चीजों से सुख मिलेगा, कौन सा सुख, तो टेम्पररी सुख नहीं, जो डीप प्लेजर मिलेगा वो चीज हमारे लिए अच्छा है, हमको देखना है। हम लोग को मैंगोला पीना अच्छा है, मैंगोला से भी सुख मिलता है, लेकिन अगर अच्छा आम का रस है वो पीने से ज्यादा सुख मिलता है, वो देखना है। तो जो ताजा आम होता है उसका रस में जो मिठास होती है वो शक्कर डाले हुए कोई कोल्ड ड्रिंक में नहीं होगी। तो दैट इज द हाईएस्ट प्लेजर। पीपल विल फील अगर प्लेजर है तो किसी को बर्गर खाने से प्लेजर मिलता है, तो वो उससे नहीं, जो अमृत के जैसा जिसका टेस्ट है उस चीजों को से प्लेजर जो मिलता है, असली आनंद मिलता है, उस आनंद को पाने की कोशिश करनी। तो हमारा इंस्टिंक्ट जो बताता है हमको, हमारा ब्रेन सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा लैब होता है। हमको क्या जरूरत है, प्यास लगेगी तो हमको पता चलता है कि शरीर में पानी की कमी है तो हम लोग पानी पीते हैं, भूख लगेगी तो शरीर को पता है कि इसको अभी खाने की जरूरत है। उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है, ना कि कोई बताए या हम भी बताए कि इस वक्त खाना खाओ, इस वक्त पानी पियो, उसको फॉलो नहीं करना है। हमारा शरीर, हमारा मन ज्यादा शक्तिशाली है समझने के लिए। डोंट फोर्स योरसेल्फ किसी तरह से फास्टिंग में या ये प्रोग्राम में फोर्स नहीं करते हम लोग पेशेंट को, क्योंकि अपना अपना सबका शरीर अपनी तरह से बना हुआ है। तो उसके हिसाब से उनको जिस चीज की जरूरत है वो शरीर बताएगा, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, यानी पानी और लिक्विड बराबर पीते रहना है। कंप्लीट रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अवॉइड स्क्रीन। हमको पता है सब कुछ मोबाइल पे लैपटॉप पे हो रहा है, लेकिन जब भी हम लोग शरीर शुद्धि करते हैं तो नो फोन डे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये स्टिमुलेशन है, उत्तेजना देता है ये स्क्रीन। So we have to try and avoid these screens as much as possible. Whatever is unavoidable, because the program is conducted through Zoom and through WhatsApp, so हम लोग को तो देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी हमको मिनिमाइज करना है। Do chanting, listen to music and read books. सबसे अच्छा फायदा होता है इन चीजों का। डिटॉक्स के दरमियान जब हम लोग 5 या 7 दिन को पेशेंट को आराम देते हैं, तभी ये चीजें करने से उसका ज्यादा फायदा होता है। जब ये चैंटिंग आप नॉर्मल, जैसे हम लोग दिन में 3-4 बार खाना खा रहे हैं, उस वक्त चैंटिंग करेंगे तो उसका गहराई हमको नहीं पता चलता है। म्यूजिक अगर इन दिनों में सुनेंगे तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। जो किताब पढ़ेंगे, पहले पढ़ी होगी किताब, फिर भी बाद में जब भी शरीर शुद्धि के दौरान पढ़ेंगे या उसके बाद पढ़ेंगे,
तो उसका ज्यादा गहराई से गो टू द डेप्थ ऑफ द व्हाट द ऑथर वांट्स टू टेल अस, इतने इसके फायदे होते हैं। प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज योगा। योग ऐसा चीज है, आपको सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जो एनर्जी बढ़ाता है। तो फास्टिंग में लोगों को लगता है हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, थक जाएंगे, लेकिन केवल योग से हमारी एनर्जी बढ़ती रहती है। बाकी कोई भी जो कसरत है, एक्सरसाइज है, that will take away your energy. Only yoga will give you increased energy, and meditation will calm your mind. And the diet charts that are given, okay, so that you have to follow. Next, so there are these diet charts that are have to be followed. हम लोग इसमें gradually खाने को कम करते हैं। लोगों को लगता है कि फास्टिंग अच्छा है तो कुछ खाते नहीं, that is very wrong. There is a methodical way to go into this fasting and detox. तो उसको धीरे धीरे से हमको फास्टिंग कराना होता है। अगर मेथोडिकल नहीं किया तो इसका बहुत गलत इम्पैक्ट शरीर पे हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि फास्टिंग अच्छा है, हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीजियस फास्ट रखते हैं। अभी पिछले महीने रोजा लोगों ने फॉलो किया, रिलीजियस फास्ट होता है। हमारे हिंदू संस्कृति में होता है कि 15 दिन में एक बार एकादशी में फास्ट करें। तो ऑल दिस फास्ट आर डिफरेंट, बट व्हेन वी डूइंग फास्टिंग फॉर क्लेंजिंग द बॉडी, इट हैज टू बी मेथड फॉलोड। इसमें हम लोग इंश्योर करते हैं कि शरीर के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म साइड इफेक्ट भी नहीं। तो हम लोग ने ये प्रोग्राम बनाया। इसमें आपने देखेंगे तो सेकंड डे में सॉफ्ट डाइट विद एसपी लिखा है। एसपी यानी शंख प्रक्षालन। जो योग करने वाले उनको पता है कि नेचुरल शरीर को साफ करने का ये एक जो पद्धति है उसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन। उसको हम लोग ने इसके साथ जोड़ा है, ताकि क्या होता है, जब भी हम लोग खाना नहीं खाते तो पेट का मूवमेंट नहीं होता है, बॉवेल्स क्लीन नहीं होते, तभी ये जो शरीर के अंदर एसिड निर्माण होते रहता है रोज, डाइजेस्टिव जूसेस जो सेक्रेट होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए शंख प्रक्षालन का एक उपयोग ये दूसरे दिन हम लोग करते हैं। शरीर इंटरनली साफ होगा, पेट इंटरनली साफ होगा तो डिटॉक्स में ज्यादा मजा आएगा, या उपवास में ज्यादा मजा आएगा। तो फिर ये फास्टिंग होता है, उसके बाद लिक्विड डाइट होता है, फिर धीरे धीरे से फिर से हम लोग आहार को बढ़ाते हुए बैलेंस डाइट लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जो फास्टिंग होता है उसके बाद नॉर्मलाइज करना डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फास्टिंग करना बहुत आसान होता है। अगर हम आज खा रहे हैं, कल हमने नहीं खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर परसों या डे आफ्टर टुमारो हमको फिर से खाना है, तभी हम लोग ने रेस्ट किए हुए पेट को तुरंत कुछ हेवी खाना दिया तो लूज मोशन हो सकता है, डायरिया, डिसेंट्री और वॉमिटिंग हो सकता है अगर हम लोग ने झटका दिया पेट को। और बहुत लोगों ने जो गलत तरीके से फास्टिंग करते हैं उनको फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज द फूड। नेक्स्ट, एंड देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट क्योर। इसके बाद ये शुद्धि के बाद जिसको भी बीमारी है, जैसे मैंने बताया किसी कुछ लोगों को बीमारी होता है, डायबिटीज होता है, बहुत कॉमन है। इंडिया इज द लीडिंग पोजीशन इन डायबिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सब जो बीमारी होती है, हार्ट डिसीज, इनके बाद ये शुद्धि के बाद इसके ऊपर तुरंत ट्रीटमेंट करने से ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। शुद्ध शरीर के ऊपर जो भी संस्कार हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग, आप लोगों ने सुना है कि होम रेमेडीज होती है, घरेलू चिकित्सा या ट्रेडिशनल रेमेडीज होती है, पारंपरिक चिकित्सा होती है। तो कभी कभी हम लोग को अभी पता है कि आपको तुलसी खाना है, कोविड के दरमियान ये हल्दी खाना है, कुछ लौंग का और क्या इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा लेना है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इसका परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य है, जो टॉक्सिन्स है, वो ये मेडिसिन से स्ट्रांग होते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक तो इससे स्ट्रांग मेडिसिन लो, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, जो जिसका साइड इफेक्ट भी उतना ही स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग मेडिसिन लेना पड़ता है। तो उसकी जगह पे हम लोग शरीर के ये जो टॉक्सिन्स है इसको निकालेंगे, तो लाइट मेडिसिन, कम से कम पोटेंसी वाले मेडिसिन भी शरीर के ऊपर काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को शरीर शुद्धि करके तुरंत इलाज शुरू करना है नेचुरल मेथड से, योग से। योग का असर भी हमको सालों साल योग करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में योगिक आसन और उसका जो थेरेप्यूटिक योगा है उसका परिणाम होके लोग ये बीमारी से मुक्त होने लगते हैं। जैसे कोई दवा देते हैं, डॉक्टर की इतना कोर्स होता है, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, उसी तरह से ये एक कोर्स होता है योगिक आसन का, औषधि आहार का। ये कोर्स करके वी कैन अचीव क्योर फ्रॉम द डिसीजेस, यानी ये बीमारी से हम लोग मुक्त हो सकते हैं शरीर शुद्धि के बाद।
तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्लाइड. रिकवरी फास्ट होती है और सिंपल इसमें से हम लोग ठीक हो सकते हैं. तो दिस इज व्हाट इज द लास्ट slide that you have to understand is that is the this is the place where we live in our body. पहले इसको साफ रखना है. जैसे हम लोग हमको पता है हमको घर की सफाई और सब जरूरी, तो लेकिन शरीर की सफाई ये पैरामाउंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है. और इसके लिए प्रोग्राम है. इसके लिए कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार होते हैं, जैसे कुछ वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, यानी ठंडा ठंडा पैक लगाते हैं हम लोग. एक शरीर से बाहर जब भी दोष निकलते तो तकलीफ देख के निकलते हैं, तभी कुछ सिंपल ट्रीटमेंट यूज करते हैं. ठंडा गर्म सेक होता है और हॉट फूड बाथ जैसे ट्रीटमेंट होते हैं. कुछ पॉइंट्स होता है एक्यूप्रेशर के, कुछ मसाज के टेक्निक्स होते हैं जिसको दर्द है उससे उनको आराम मिलते मिलते ये प्रोग्राम अच्छी तरह से कर सके और बाद में बीमारी से ठीक हो सके. इसके लिए सिंपल ट्रीटमेंट्स होते हैं नेचर क्योर में. तो इस तरह से ये डिटॉक्स का प्रोग्राम है. लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा मुश्किल है किसी को समझने के लिए, यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस, about the thing that I have told. And once again, thanks for inviting me and being there. So please, I think we can now open for questions. गिलिन जी, कुछ questions है तो बताइए. Yes, sir. Thank you for first of all, thank you for a very interesting and very knowledgeable session. बहुत ही informative session था आपका. आपने काफी कम समय में आपने बहुत सारी अच्छी information हमारे दर्शकों को provide की है और I am sure हमारे सभी दर्शक ये सब information लेके इसका उपयोग करेंगे. फिलहाल तो मतलब आपके जैसा session शुरू था उसी समय questions आना start हो गए थे, तो that shows that the level of interest और जो एक लोगों को एक उसमें उत्साह नजर आया है. तो सबसे स्टार्ट में मैं क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूंगा और देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अमित दाभाडे दैट वेयर कैन वी गो फॉर डिटॉक्स एंड व्हाट इज द फी. सो वेरी गुड क्वेश्चन. यानी पता चला कि लोगों को इम्पोर्टेंस ध्यान में आया तो तुरंत दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई अप्रिशिएट दैट. तो नॉर्मली एज आई टोल्ड यू इन द लॉकडाउन पीरियड वी आर ऑल दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. हम लोग ने आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, हम लोग ने ऑनलाइन डिटॉक्स शुरू किया है. तो हम लोग आपको वी हैव टू जस्ट रजिस्टर विद आरोग्य मंदिर एंड टेल देम दैट वी वांट टू जॉइन दिस डिटॉक्स प्रोग्राम. और हम लोग जूम पे इसका ये जो जानकारी है, इसका सेशन होता है इंटरेक्टिव सेशन, वो कंडक्ट करते हैं. वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो लोग काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए. और उनको डाइट चार्ट आएगा, तो यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर डाइट चार्ट. सुबह से कौन से जूस लेना है, कौन से काढ़ा लेना है और कैसे पानी पीना है, ये सब प्रोग्राम आएगा. उनको साथ में योगासन का प्रोग्राम आएगा, वो प्रोग्राम उनको ऑनलाइन कर सकते हैं. और तो दिस एंड अगेन बिकॉज इट इज ऑनलाइन वी कुड गिव दिस इन अ वेरी लो कॉस्ट. यानी हम लोग को पहला पता है कि हम लोग कंडक्ट करते थे तो मिनिमम इसका पर डे 1000 रुपीज खर्चा आता था. जहाँ रहने जाएंगे वो सेंटर का अलग खर्चा अलग, तो 1000 से 2000 रुपए पर डे खर्चा. तो अगर 5 दिन का करेंगे तो 10,000 खर्चा आता था. तो बट लकीली सिंस वी आर डूइंग इट एट होम, ये बहुत कम खर्चे में हम लोग ने प्रोग्राम देना शुरू किया, जस्ट टू प्रमोट इट. लोगों तक ये चीजें पहुंच जाए. और ऑनलाइन है, जितने लोग ज्यादा ज्वाइन हो जाएंगे उसकी वजह से हमारा खर्चा भी निकल जाएगा. तो इन ओनली 750 रुपीज वी कुड एक्सटेंड दिस प्रोग्राम टू द पार्टिसिपेंट्स. So that is one more advantage. We want that everybody, because we know everybody is going through an economic crisis these days. तो सबको ये अफोर्डेबल हो, आसानी से ज्वाइन कर सके, इसके लिए बहुत कम खर्चे में इस प्रोग्राम को हमने बनाया है. तो we expect that people can afford this. That is the very low cost program that Arogya Mandir is offering. Thank you sir. There is another question from Sampada Phadke and वो पूछ रहे हैं कि क्या इसका कोई क्लिनिकल टेस्ट होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स है. हाँ, वेरी गुड. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज टॉक्सिन बिल्डअप शुरू में होता है तो शरीर उसको शरीर के अंदर छुपा के रखता है. वो लिवर फंक्शन डिस्टर्ब नहीं करता है, कुछ नहीं करता. तो इनिशियल स्टेजेस में कुछ पता नहीं चलता है. इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ आपको मेंटल सिम्टम्स आएंगे, यानी शरीर में मजा नहीं आएगा, फर्स्ट सिम्टम. तो ये क्लिनिकल टेस्ट के लिए क्या होता है, ये जब भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेगी बहुत आगे, तो
जो भी डिसीज होता है, अगर किसी को जॉन्डिस हो गया तो उसके लिवर में टॉक्सिन बहुत जमा हो गया, उसका लिवर खराब हो गया। अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया तो दैट टॉक्सिन्स आर एक्यूमुलेटेड इन द किडनी, एंड व्हेन यू डू द टेस्ट यू कम टू नो कि इसमें तो एनी डिसीज इज अ इंडिकेशन दैट टॉक्सिन्स आर एक्यूमुलेटेड टू दैट लेवल कि वो ऑर्गन अभी किडनी के पास कैपेसिटी नहीं, ताकत नहीं है वो स्टोन को बाहर फेंकने की। गॉल स्टोन के हमारे पास पेशेंट भी आ रहे हैं, जो गॉल ब्लैडर में बाइल के सॉल्ट्स होते हैं, that salts the bile becomes saturated, और ये जो कोलेस्ट्रॉल के वगैरह पार्टिकल्स होते हैं दैट कम टुगेदर एंड बिकम अ स्टोन, और वो बाइल के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है उनको, और ये बहुत और बाद में डॉक्टर बोलते हैं इसको अभी ऑपरेशन से गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। तो इट इज सो सिंपल, व्हेन वी कम टू नो दैट विद डिटॉक्स दिस बाइल कैन स्टार्ट फ्लोइंग, the stones can disintegrate, यानी इसका छोटे छोटे टुकड़े होकर पिघलने लगते हैं, स्टोन्स निकलने लगते हैं, we can prevent that. So pathological changes occur when we have gone to an advanced stage of disease, जब शरीर हैंडल नहीं कर सकता है, इसको साफ नहीं कर सकता है और एक ऑर्गन में जमा करने लगता है, तभी वो बहुत बीमारी का एक रूप ले लेता है, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन, तो तभी इसमें आएगा। तो any disease process is a indication, but before that you can just feel tiredness, fatigue, जो मैंने सिम्टम्स बताए वो आपको फील होने लगेंगे। सबसे पहला जो अगर आपको टेस्ट करना है, सीइंग इज बिलीविंग, हमको पता है कि हम लोगों को देखना पड़ता है, लोगों को आजकल सब लोग मानते हैं कि कोई रिपोर्ट देखे। अगर आपने यूरिन टेस्ट किया और यूरिन एसिडिक आया तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन, यूरिन का पीएच है वो हाईली एसिडिक होने लगा, 5 होने लगा, 5 के आसपास होने लगा, तो इट इज अ इंडिकेशन दैट नाउ एसिड्स आर फॉर्मिंग इन द बॉडी एंड द बॉडी इज ट्राइंग टू थ्रो इट आउट थ्रू यूरिन। तो ये लक्षण में शरीर को कुछ जान नहीं होता है, इतना वो कॉमन हो गया एसिडिक, तो आजकल डॉक्टर बोलते हैं एसिडिक तो होता ही है सब। जैसे आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ डायबिटीज है और सिर्फ ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, ऐसा लोग मानने लगे। वैसा ही ये यूरिन का एसिडिक होना भी एक आम चीज है, कॉमन चीज है, ऐसा लोग मानने लगे, इसलिए इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के नियम से हमारा यूरिन भी अल्कलाइन हो, तभी आपको पता है कि कुछ लोग वो यूरिन थेरेपी भी करते हैं, तो इट रिक्वायर्स द यूरिन टू बी अल्कलाइन टू कंडक्ट दैट यूरिन थेरेपी। और ये तो कहने का मतलब है कि कोई वैसे सिम्टम्स बहुत जरूरी होते हैं और ये टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं आजकल की कंडीशन में आपको टेस्ट की जरूरत नहीं, शरीर ही बताता है। आप जाएंगे लैब में तो इट इज अ रिस्क, गोइंग आउट कॉलिंग अ टेक्नीशियन एट होम आल्सो इज इन रिस्क इज इन्वॉल्व, सो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन ऑफ द बॉडी एंड देन टू कंफर्म कि आपका डिसीज ठीक हो गया कि नहीं, बाद में आप टेस्ट कर सकते हैं। देयर इज अनदर क्वेश्चन, 2-3 लोग हमारे जो हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, एक है धर्मराज जी, वो पूछ रहे हैं कि आई एम डायबिटिक एंड हाउ डिटॉक्स कैन हेल्प मी, प्लीज एडवाइस। यस, वेरी गुड। सो एवरीबॉडी नोज दिस लॉजिक कि डायबिटीज कैसे होता है कि हम लोग जितना कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जितना शक्कर खा रहे हैं, उस शक्कर को, उतना एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमारा लाइफ है, बैठे हैं हम लोग, ऑफिस में बैठते हैं, ट्रैवलिंग के वक्त कार में बैठते हैं, खाना खाते वक्त बैठते हैं और टीवी देखते हुए बैठते हैं, तो वी आर जस्ट सिटिंग और ये यूज नहीं होता है जो कैलोरीज वी आर कंज्यूम, एंड दैट बिल्ड्स अप शरीर के अंदर, और वो एक बार सडनली शुगर 400-500 दिखाता है कि ये बिल्डअप हो गया है। तो हमको क्या करना है, सिंपल है, जितना हम कैलोरी यूटिलाइज कर रहे हैं उससे कम कैलोरीज लेना है। तो जब भी फास्टिंग करते हैं तो तुरंत कैलोरीज कम होता है, तो या शुगर कम होने लगता है, तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। तो हम लोग बाकी कोई मेडिसिन को डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे थायराइड की मेडिसिन या ब्लड प्रेशर की, लेकिन शुगर की मेडिसिन ये डिटॉक्स के दरमियान हम लोग कम कर सकते हैं। बहुत लोगों की शुगर की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, लेकिन बाद में उनको फिर, जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू गो फॉर थेरेपी, जैसे योग में डायबिटीज के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम है आरोग्य मंदिर में, तो वैसे आपको योगिक थेरेपी करना पड़ता है, और पूरा डायबिटीज मुक्त होने के लिए आपको फिर आगे कुछ महीनों तक ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन डिटॉक्स इज द बिगिनिंग ऑफ क्लेंजिंग। शुगर लेवल ड्रॉप होगा तभी कभी हमको हनी देना पड़ता है, सबसे अच्छा हाइपोग्लाइसेमिया के लिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया बहुत डेंजरस होता है। शुगर बढ़ गया तो इतना डेंजरस नहीं है, शुगर ड्रॉप हो गया तो पर्सन कैन गो इनटू कोमा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि इसके वक्त आप जो डायबिटीज है, अगर प्रोग्राम कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, तो उनको साथ में शहद रखना है। शहद का स्पेशलिटी या पेक्युलरिटी ऐसा है कि अगर टंग पे लेंगे तो ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है तुरंत,
It is like immediately it absorbs into the bloodstream and the brain gets glucose instantly. तो हाइपोग्लाइसेमिया का डर नहीं रहता है, लेकिन डायबिटीज भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे और एक दर्शक है लतिका वोरा, शी इज आस्किंग कैन वी आवरसेल्व्स डू इट एट होम फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस? Once again, come again. Can we ourselves do this detox program at home following your instructions? Yeah, the program is conducted that way only. We give instructions. We have a team of experts and who can manage. जैसे मैंने बताया योग का instructions होगा, program का instructions होगा, diet chart का instructions होगा, and I'm there to monitor the whole process I'm conducting. तो हम लोग इस ये program को अगर आप guidance के अंदर करेंगे तो ये घर पे करना है, यही ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया कि ऑनलाइन डिटॉक्स एट होम ऐसा बनाया, so we can definitely do it. And ये डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोग्राम के लिए is it mandatory to switch to Ayurvedic lifestyle? Switch to Ayurvedic lifestyle. Yes, is very good question. Normally what happens is ऐसे जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड है ये प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जो भी उपचार पद्धति है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया हम लोग इवन एलोपैथिक जो हम लोग बोलते हैं कि वी आर अ ड्रगलेस थेरेपी, वो तो इवन एलोपैथिक डॉक्टर भी ध्यान देता है पेशेंट का, और इसमें आयुर्वेदिक भी होता है कि इसमें किसी को त्रिदोषात्मक जो ये है दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण से अगर पेशेंट को देखना है, सीजनल जो चेंजेस होते हैं हम लोग ये भी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि अभी वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में क्या खाना है, तो ऐसे नहीं कि सभी को सेम चीज पूरे साल में खाना है, तो ऋतु के हिसाब से भी होता है, तो दैट इज आयुर्वेदिक क्या कंपोनेंट इन दैट। एट द सेम टाइम ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, जब भी हम लोग डिटॉक्स ऑनलाइन शुरू करते तो दुनिया भर से लोग रजिस्टर करेंगे, तो यूरोप में बैठा हुआ आदमी और यूएस में बैठा हुआ और एशिया में बैठा हुआ आदमी को हम लोग का थोड़ा सा अलग एक गाइडेंस होगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि उनको भी सूट होगा, उनकी कंडीशंस को, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को वो भी देखते हैं। तो इन इंटीग्रेटेड अप्रोच दिस ऑल इज इनकॉर्पोरेटेड। काफी सारे दर्शक जो है वो उनका एक ही सवाल आ रहा है कि हाउ मच लॉन्ग इज द ड्यूरेशन टू टेक दिस प्रोग्राम, मतलब कितने दिन तक ये डिटॉक्स का प्रोग्राम चलेगा? राइट, तो बेसिकली आइडियली इट इज एक्चुअली वन डे फास्टिंग जो होता है, जो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई फास्टिंग, यानी निर्जल उपवास, जो हमारे माइथोलॉजी में है इसको बोलते हैं निर्जल उपवास, या जैसे रोजा में करते हैं कि दिन भर में थूक भी अंदर नहीं लेते, दैट इज एक्चुअली फॉर डन फॉर 24 आवर्स एट होम, एंड आइडियली अंडर आवर सुपरविजन इन हॉस्पिटल वी कैन डू इट फॉर 72 आवर्स। 3 दिन का प्रोग्राम होता है, लेकिन ये फास्टिंग में जाने के लिए हमको पहले थोड़ा सा लिक्विड डाइट लेना पड़ता है, उसके पहले सॉफ्ट डाइट, तो 3 दिन लगते हैं फास्टिंग में जाने के लिए, और फिर उसके बाहर आने के लिए 3 दिन। तो अंडर आवर ऑब्जर्वेशन द पेशेंट विल बी 5 to 7 days विल बी अंडर आवर ऑब्जर्वेशन। द प्रोग्राम इज फॉर मिनिमम ऑफ 5 to 7 days। लेकिन अगर कोई वीक पेशेंट है तो उनको धीरे धीरे उनका वीकनेस कम करने वाला डाइट, कोई धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली अगर प्रोग्राम में जाना है तो कभी कभी हम लोग इसको 10 दिन का 15 दिन का भी बनाते हैं, but ideally if a person is from say 15 to 60 age group, so we can do it for 5 to 7 days. Okay. There is another viewer, Mr. His name is Amit Kaushik, and he's asking कि bloating और gas का जो feeling है, no hunger का जो feeling है, जो फिलहाल जो एक हमारी लाइफस्टाइल बन गई है कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, एक्सटेंडेड लॉकडाउन, तो काफी सारे लोग घर पर ही हैं, ज्यादा कुछ उनका मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो उनको भूख नहीं लगती है, दे आर नॉट फीलिंग हंग्री, तो उसके ऊपर कोई रेमेडी है क्या? Exactly. So this is what is detox meant for. First thing is bloating and gas is a sign of indigestion. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वीक है, जैसे हमने बताया कि डिटॉक्स में जो ऑर्गन्स है उनको डीप रेस्ट मिलता है, तो these organs are not ready or don't have enough capacity to digest what we are putting in. तो हम लोग जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, कुछ लोग नूडल्स भी खा रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे हैं, जब कभी शुरू में तो बहुत चीजें मिलना मुश्किल थी, तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता होगा, तो ये कॉमन है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन द बॉडी शोइंग दैट ओके योर डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर, तो पहले उसको हमको रेस्ट देना है ऑर्गन्स को, तो इसका काम ये, इसका उद्देश्य है रेस्ट क्योर, यानी जो थका हुआ व्यक्ति है उसको हम लोग बोलेंगे अभी खा और दौड़, तो नहीं दौड़ सकता, उसको पहले उसको आराम देना चाहिए, उसको खाना भी नहीं खिलाना चाहिए, वैसे थके हुए ऑर्गन्स को हमको पूर्ण रेस्ट देना है, तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट गैस एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। एंड हंगर, सबसे इम्पोर्टेंट, ये वेरी गुड क्वेश्चन, कि हंगर नहीं होता है, और हंगर नहीं होता है इसलिए हम लोग को पहला इंडिकेशन होता है कि तो
हम लोग खाना खाने की इच्छा नहीं होती, फिर आदमी क्या करता है कि कुछ तो और अच्छा टेस्टी सामने आएगा तो ही खाएंगे। तो जनरली क्या होता है, बच्चे नहीं बोलते खाना नहीं खाएंगे, तो माँ क्या करती है, इसको जो पसंद है वैसा कुछ बनाए तो वो टेस्टी और ऐसा करके उसको भूख के बिना ही खिलाने लगते हैं। दैट इज वन प्रॉब्लम दैट हैपेंस। दूसरा, अगर भूख अच्छी है तो आदमी को, जिसको करेला कभी मुंह में लेगा नहीं, ऐसी स्थिति होती है, तो वो करेला भी खाएगा। तो हम लोग ने देखा है कि जब भी फास्टिंग करते हैं तो जो भी चीज देते हैं फास्टिंग के बाद वो अच्छी लगने लगती है। द बॉडी लाइक्स इट। नेचुरल थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल थिंग, नॉट अननेचुरल। तो नेचुरल चीजों की टेस्ट, और ये टेस्ट बर्ड भी हमारे सेंसिटिव हो जाते हैं डिटॉक्स के बाद, तो उसकी टेस्ट अच्छी लगने लगती है। तो हंगर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन चीजों को की एक्चुअल इफेक्ट को पहचानना, चीजों का एक्चुअल टेस्ट को पहचानना, एक्चुअल उसके अंदर क्या क्या गुण धर्म है हमारे शरीर में। अगर विटामिन सी की कमी है, क्या विटामिन B12 की कमी है, हम लोग बार बार टेस्ट नहीं कर सकते। लोगों को पता है जिसने B12 और D3 का टेस्ट किया है, कम से कम 1200 या 2500 रुपया टेस्ट को लगता है। तो ये हमारा शरीर बताता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे शरीर में क्या कमी है, तो वो अच्छी लगने लगती है। तो दिस इज जैसे मैंने बताया, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ टंग और टेस्ट ऑल्सो हैपेंस। तो भूख तो लगेगी, लेकिन भूख के साथ कुछ भी खाने ऐसा नहीं होगा। शरीर मांगेगा, हमारा मन मांगेगा कि मुझे आज विटामिन सी की कमी है, तो मुझे नींबू पानी पीने की इच्छा हो गई है, मुझे आंवला खाने की इच्छा हो गई है, और शरीर बताएगा। तो हंगर के साथ एक्यूरेसी भी आएगा हमारे मन में, हमारे टेस्ट में, कि व्हाट वी वांट, एंड अकॉर्डिंगली विल टेक दैट। तो हंगर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हंगर तो मैंने बताया, अच्छी टेस्टी चीजें सामने देख के लोगों का ऑटोमेटिक हंगर जागरूक होता है। तो उससे भी ज्यादा ट्रू हंगर या ट्रू रिक्वायरमेंट, वी बिकम ट्रू क्रेविंग, वी बिकम वी स्टार्ट द बॉडी स्टार्ट्स टू एनालाइज। काफी सारे दर्शकों को सर आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी मांग रहे हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम कि आप जरूर आरोग्य मंदिर के हमारे टीम के साथ संपर्क कीजिए और आपको डॉक्टर सावी की जो भी डिटेल्स है वो मिल जाएगी। हाँ, वी आर अ टीम विद आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर से कांटेक्ट करेंगे तो सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You have to contact Arogya Mandir. We can enroll and we can get in touch with me also and Yes. with all our team. एक सर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो काफी महीनों से मेरे दिमाग में, सालों से शायद था। वो हमारे एक दर्शक है जिनका नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा, लेकिन उनका डिवाइस का नंबर है, सो आई कैन नॉट नेम हिम। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पंचकर्मा एंड ये जो शिवांबु थेरेपी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? ओके, तो पंचकर्मा का तो उसके लिए पूरा एक लेक्चर होगा, बट आई एम नॉट एंटाइटल्ड। जानकारी तो है मुझे, लेकिन वी विल हैव आयुर्वेदिक फिजिशियन टू टॉक अबाउट दैट, बट इट इज आल्सो अ वे ऑफ शुद्धि, बट इट इज द आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी। यानी हम लोग कभी भी लोगों को बोलते हैं कि, लोग कभी पूछते हैं कि ये अच्छा है, ये करना है क्या, वो करना है, हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, कि देयर आर स्टेजेस। तो क्योंकि ये पंचकर्मा का टॉपिक निकला, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये जो आयुर्वेद है, ये जो योग शास्त्र है, ये कम से कम 2000 साल पुराना शास्त्र है। इससे ज्यादा होगा लेकिन मिनिमम। तो 2000 साल पहले हमारे शरीर में ये क्लोरीन का पानी नहीं जा रहा था, ये पेस्टिसाइड्स युक्त सब्जी नहीं जा रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग इनहेल नहीं कर रहे थे, तो ये टॉक्सिन्स फ्री शरीर था। उसके ऊपर ये योग और आयुर्वेद इतना बेहतर काम कर रहे थे, इसके सिवा कुछ जरूरत ही नहीं थी। कोई एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत नहीं थी, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं थी, कोई आईसीयू की जरूरत नहीं थी। और लोग अच्छी तरह से, बहुत लंबे, ऐसे सुना है मैंने कि 100-150 साल तक जीते थे। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी हाई बिकॉज ऑफ ऑल दिस हर्ब्स। अभी क्या हो गया कि ये टॉक्सिन्स जो शरीर में आ गए, इसलिए पहला स्टेज है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट एड करना है, तो कोई भी उपचार या कोई भी हमारे पास संस्कार करने शरीर के ऊपर, तो पहले हमको शरीर शुद्धि करनी जरूरी है। इसलिए पहले जैसा हमारा शरीर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो ये पंचकर्म में भी काम करेगा, आयुर्वेद भी काम करेगा, योग बहुत बेहतर से काम। ऐसे भी योग का फायदा हो रहा है, लेकिन और बेहतर और इंस्टेंट और जल्दी इसका फायदा होने के लिए हमको ये करना है। What was the other part of the question? शिवांबु थेरेपी। तो शिवांबु में जैसे मैंने बताया, हमारा यूरिन एसिडिक होता है। शिवांबु इज ड्रिंकिंग यूरिन। तो यूरिन में बहुत सारे हमारे जो एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स और कुछ बहुत सारे एक्टिव हार्मोन्स हमारे यूरिन से बाहर निकलते होते हैं, जो हमारे शरीर यूज नहीं करता है। तो ऐसे कुछ लोगों ने ढूंढ के निकाला कि ये सबसे अच्छी चिकित्सा अगर हम यूरिन ही ले सके। ठीक है, अगर फिर से वही बात है कि शिवांबु चिकित्सा जिसने ढूंढ के निकाला, बहुत पुराना किस्सा है, तभी हमारा यूरिन एसिडिक नहीं था। तो ये एसिडिक यूरिन अगर हमने कंज्यूम किया इसी कंडीशन में, हम लोग अगर पानी पूरी खा रहे, वड़ा पाव खा रहे और पिज्जा खा रहे, और उसके बाद हम लोग यूरिन अगर ले रहे, तो इट इज गोइंग टू बी मोर हार्मफुल।
the toxins that is thrown out of the body, we are going to ingest that. तो हम लोग को शिवाम्बु करना ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। लोग आपने सुना होगा कि अगर इंजुरी हो गया तो उसके ऊपर पहला यूरिन डालते थे और यूरिन के जैसा एंटीसेप्टिक कुछ नहीं था, लेकिन अगर ये एसिडिक यूरिन भी हम लोगों ने डाला तो भी वो जलेगा। तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यूरिन, यानी हम लोग को जैसे बताया टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो यूरिन अगर स्किन पे डालेंगे तो बर्निंग होगा, तो दैट इज द साइन दैट यूरिन इज एसिडिक, जैसे एसिड बर्न करता है, जलाता है, तो इसको अल्कलाइन करना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी अगेन आई कम बैक टू डिटॉक्स, कि शरीर को शुद्ध करेंगे। और शुद्धि का लक्षण क्या है, तो यूरिन विल स्टार्ट गेटिंग अल्कलाइन एंड देन यू हैव टू ड्रिंक। इसलिए अभी क्या करते हैं कि शिवाम्बु चिकित्सा के जगह पर गोमूत्र चिकित्सा करते हैं। तो गाय का भी यूरिन नहीं लेते, वो भी जर्सी गाय का तो बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन देसी गाय भी है, अगर वो भी चारा उसका जो फीड होता है वो अगर अच्छा नहीं होगा, कोई यूरिन अच्छा नहीं होता है। तो जो काफ होता है, यानी गाय का बछड़ा होता है, वो जो गाय के दूध भी पीता है उसका यूरिन अल्कलाइन है, 100% अल्कलाइन होता है। तो वो गाय के बछड़े का यूरिन का उपयोग करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, एंड दैट कैन बी डन बिकॉज इट इज अल्कलाइन। सो दैट इज द बेसिक थिंग, इज द alkalinity of the urine is important in Shivambu चिकित्सा। Okay, thank you sir. There is another viewer, सुनंदा जी पूछ रही है कि ये डिटॉक्स प्रोग्राम फैटी लीवर के लिए कोई डिटॉक्स का कोई प्रोग्राम है? Yes, that all research has been conducted. If you can go to the latest research 2020 का रिसर्च है, YouTube पे देखेंगे तो रिसर्च has been conducted कि फैटी लीवर पे अगर कोई चिकित्सा सबसे फास्ट काम कर सकती है तो फास्टिंग। तो लीवर में फैट्स जमा होने का काम, जैसे मैंने बताया, वो फैट लीवर के बाहर के त्वचा में जमा होने लगता है, विच द लीवर कैन नॉट हैंडल, एंड दैट्स व्हाई वी गेट फैटी लीवर। सो दैट कैन बी ट्रीटेड, बेस्ट वे इज फास्टिंग, एंड दैट इज रिसर्च कंडक्टेड इन जर्मनी। देयर इज अ फास्टिंग इंस्टीट्यूट जहां हजारों लोग साल में करते हैं। तो ऐसे कितने साल से लाखों लोगों ने फास्टिंग किया होगा, केवल फास्टिंग चिकित्सा ही करते हुए इंस्टीट्यूट में, और वहां उन्होंने देखा है टेस्ट के आधार पे कि फैटी लीवर इज द फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स करेक्टिंग when we are doing fasting. Okay. Sir, there is another question from Mr. Nagaraju. He is asking कि detox program जो है ये कौन से एज ग्रुप के लिए, जेंडर के लिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है क्या? हाँ, ये मैंने जैसे बताया, ये अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, जिनका अभी हमारे प्रोग्राम में 75 एज के लोग भी जुड़ जाते हैं डिटॉक्स में, और छोटा बच्चा भी जुड़ जाता है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं है तो हम लोग उनको एज का बैरियर इतना नहीं होता है, लेकिन जनरली वी से दैट यू हैव टू बी बिलो 60, दैट इज द एज ग्रुप दैट वी हैव डिसाइडेड कि वंस द ग्रोथ इज कंप्लीट टू 15 to 18 में बच्चे का ग्रोथ भी पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वो डिटॉक्स कर सकता है आफ्टर 18 एंड अप टू 60। इफ द हेल्थ इज रोबस्ट एंड अच्छा हेल्थ है, कोई बाकी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, जैसे ये नहीं है जो हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस दिखाए वो नहीं है, तो हम लोग उसके बाद के भी एज के लोगों को दे सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक तो है ही नहीं, क्योंकि लेडीज ज्यादा कर रही है, ऑल्दो दे आर सो बिजी विद एट होम, वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग एट होम, बट फीमेल्स आल्सो जॉइनिंग इन अ बिग वे, बट एवरीवन कैन डू, नॉट अ प्रॉब्लम। एक हमारे दर्शक है नीता जी जो पूछ रहे हैं कि she cannot do fasting, वो फास्ट नहीं कर सकते, तो can she participate in the detox program? Yeah, those who can't fast because of some problems, we can give them liquid fast, we can give them fruit fast. I told you, because the highest method of fasting or the most effective method of fasting is dry fast. Dry fast सबसे फास्ट है, फास्ट यानी सबसे तेज है, लेकिन जो ड्राई फास्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते दूसरा कुछ, तो उनके लिए लिक्विड फास्ट है। तो हर 2 घंटे में हम लोग लिक्विड लेके लोग 1 हफ्ते तक रह सकते हैं, 2 घंटे में लिक्विड लेके। जिनका प्रोटीन लेवल्स अच्छा है, जिनका हेमोग्लोबिन अच्छा है, उनको हम लोग लिक्विड फास्ट देते हैं। और अगर उनको लिक्विड भी किसी को नहीं होता है, लिक्विड लेके किसी को नौशिया आता है, इतना लिक्विड इतना पानी, तो उनको फ्रूट फास्ट देते हैं, केवल फ्रूट पे रह सकते हैं। किसी को केवल वेजिटेबल फास्ट देते हैं, किसी को जैसे हम लोग एक ये होता है एपिग्रास्टिक जो रिफ्लक्स होता है, यानी जिसको हिकअप्स आता है या ढकार आते हैं हाथ लगाने से, ऐसे लोगों को जवार फास्ट देते हैं, केवल जवार पे रखना, तो उसको मोनो डाइट भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्टिंग सबसे इफेक्टिव, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ फास्टिंग इज ड्राई फास्ट, बट देयर आर इन्यूमरेबल अदर फास्ट। वी कैन हैव अ मोनो डाइट, एक ही चीज खा के भी पेशेंट को ठीक हो सकता है। उसको 1-to-1 हम लोगों को काउंसलिंग सेशन होगा या एग्जामिनेशन सेशन होगा, केस टेकिंग होगा, क्या जरूरत है वो हिसाब से
ये जो हम लोग ने मेथड बनाया, ये जो प्रोग्राम बनाया, दिस इज फॉर जनरल। तो जनरल लोग ये कर सकते हैं, और जिसको ऐसे नहीं हो सकता उनको 1-to-1 हम लोग केस टेकिंग करके डिसाइड करते हैं व्हाट फास्ट दे कैन गो फॉर। और एक क्वेश्चन है जो मेरे फादर डॉक्टर धारवाडकर ही इज आस्किंग that during the detox program what are the vegetables that we should eat and what we should not eat? Yeah, so normally vegetables, most of the vegetables are allowed during detox. अभी तो प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है आजकल, लेकिन जैसे जो सीजन में जो उगती है वेजिटेबल्स वो हम लोग देते हैं आजकल, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ये क्या ग्रीन हाउस और इसमें सब टाइप के वेजिटेबल्स आने लगते हैं। लेकिन जनरली हमको जो पता है कि कुछ सीजन में गाजर मिलता है, कुछ सीजन में मटाना मिलता है, मटर मिलता है, तो वो सीजन में वेजिटेबल्स ही खाने हैं। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स हम लोग नहीं देते खाने के लिए, जैसा आलू नहीं देते, पोटैटोज इज नॉट अलाउड, ब्रिंजल इज नॉट अलाउड, गवार इज नॉट अलाउड। तो ये जो वेजिटेबल्स है उसका भी रीजन है, ये वृद्धि करता है यानी बढ़ाता है, यानी बैंगन है ये शरीर में मसल्स बढ़ाता है, तो वृद्धि यानी बढ़ाने का काम जो करता है, जो तो वो अगर शरीर में दुर्बलता है, अगर बीमारी है तो बीमारी को भी बढ़ाएगा। तो ड्यूरिंग दिस डिटॉक्स प्रोग्राम, सिंस द टिल द टाइम यू आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द डिसीज, ये कुछ चीजें हम लोग नहीं देते। ये भी आयुर्वेदिक फिलोसफी है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है कि कुछ चीजें जो वृद्धि का काम करते, बढ़ाने का काम करते, वो अवॉइड करना है। तो ब्रिंजल, गवार, पोटैटोज, in certain conditions like thyroid we also don't allow cruciferous vegetables, जैसे ये है कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली, ये भी चीजें कुछ कंडीशंस में नहीं देते। तो बाकी सभी जो ये है सब्जियां वो अलाउ करते हैं। सर इसी से जुड़ा हुआ अगले 2 क्वेश्चंस है जो इंटरलिंक्ड है इसी से। वीना जी पूछ रहे हैं कि which fruit should we take for monofast, and पुरुषोत्तम मिस्टर अश्विन पूछ रहे हैं कि he is diabetic, so can he eat mango? ओके, तो मैंगो का पहला बोल देता हूँ मैं कि मैंगो का मेरा फेवरेट फ्रूट है और फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंगो खाने में डायबिटीज को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैंगो खाएंगे तो केवल मैंगो खाना है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, पूरा खाना खाते हैं उसके साथ मैंगो खाते हैं, तो इट इज अ वेरी हाई क्या बोलते हैं ग्लूकोज थिंग, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, तो मैंगो खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा। अगर लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से या हेल्थ की दृष्टि से ऐसे कहा गया है कि एक आम आप खाएंगे सुबह तो 1 ग्राम खून बढ़ेगा फॉर से पीरियड ऑफ 10 days और 1 month, इफ यू हैव 1 मैंगो, तो जिसका खून कम है उसका खून बढ़ेगा, इतने कैपेसिटी। आयरन रिच फ्रूट है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, तो मैंगो खाना है। दूसरा एक रीजन है, हम लोग सबको पता है कि ऑर्गेनिक फूड्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हाउ डू वी नो विच मैंगो इज ऑर्गेनिक? तो फर्स्ट थिंग इज जो ये हापुस है, जो आम क्या फलों का राजा, तो ये हापुस नहीं खाना है, ये हम लोग बोलते हैं अलग, लेकिन सबको हापुस पसंद है। उसके बाद आम कुछ लोग, मैंने देखा मेरे बच्चे भी हापुस के सिवा कोई आम खाते नहीं, लेकिन हापुस के लिए कुछ उनको हार्मोन्स देने पड़ते हैं, कल्टार बोलते हैं उसको। तो कुछ हम लोग एग्रीकल्चर लोगों के साथ जुड़े हैं तो वो बताते हैं। तो विदाउट दिस हार्मोन वो हापुस होता नहीं है। तो अगर कोशिश करना है कि हापुस छोड़ के बाकी आम खाए, जो यहाँ की वैरायटी है, तो सबसे अच्छा जो आम है वो पायरी है। पायरी ठंडा भी होता है पेट के लिए। इस तरह के आम जो छोटे छोटे आम होते हैं, रस के आम होते हैं, दो आर वेरी गुड, दे हैव डिफरेंट फ्लेवर्स। कभी कभी बहुत ज्यादा मीठे होते हैं अलग अलग आम, तो वैसे आम खाने हैं। और अगर आजकल हापुस ही अवेलेबल है, उसको ही वैल्यू है, तो हापुस खा सकते हैं आप, लेकिन उसको सिर्फ हापुस ही एक आम खाना है, दूसरा ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना है। तो डायबिटिक्स आर अलाउड, and once you are free from diabetes, then that is not a question. But when you are diabetic, you have to see that your blood sugar levels are not very high. If they are in control, you can have in your breakfast, but don't eat anything else. जो एक सवाल था वीना जी का कि कौन सा फ्रूट हम मोनोफास्ट के लिए खा सकते हैं? हाँ, तो इट डिपेंड्स। जनरली मोनो डाइट में हम लोग बीमारी के हिसाब से देते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ कि पेट की जिसको बीमारी है, जैसे हमने बताया कि गैसेस हो रहे हैं, तो गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन है पेट के अंदर, सूजन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें हम लोग केवल गुआवा का डाइट देते हैं। पेरू खाने से, पेरू अगर पूरा पेट भर के खाया तो वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग हील होती है। फिर दूसरा औषधि फल है, वो है पपीता। पपाया ऑल्सो हील्स द लाइनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की सूजन को वो हील करने लगता है। तो बट अगेन द प्रॉब्लम इज द सेम थिंग, स्टोर्स का प्रॉब्लम है। आजकल जो आ रहे पपाया वो हाइब्रिड है, गाजर और पपाया को कॉम्बिनेशन करके जो बनाए हैं, हार्ड वाले पपाया,
that are not so medicinal. जो पहले होते थे, जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनको पता होगा कि पहले पीले रंग के पपाया होते थे, which were very soft, और ट्रांसपोर्ट करने में दब जाते थे. तो they had a lot of pepin content, यानी जिसमें औषधि तत्व होते. तो वो पपाया हम लोग सभी पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं. गॉल स्टोन के लिए हम लोग केवल इसका जूस देते हैं, पाइनएप्पल का जूस देते हैं, which flushes out the gallstone. तो ऐसे अलग अलग फल है अलग अलग बीमारी के लिए. तो एक फल खा के रहना ऐसा नहीं है, एक जूस खा के. बीमारी के हिसाब से दिन के टाइम के हिसाब से, जैसे वाटरमेलन दिया तो उसके साथ कुछ नहीं देना है दूसरा, वाटरमेलन को अकेले ही खाना है. तो ऐसे कुछ नियम है कुछ फलों के, उसके हिसाब से सीजन के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से वो निश्चित होता है कि कौन से फल खाने हैं. Thank you. Not in the evening. One more important thing is after sunset fruits नहीं खाने. थैंक यू डॉक्टर सावी. आई थिंक आपने जितने सवालों के जवाब दिए उसमें पूरा जो भी डाउट्स थे हमारे दर्शकों के माइंड में वो सभी क्लियर हुए. एंड ऑल्सो आपका जो सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही एक्साइटिंग था. काफी कम समय में आपने बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया, हमारे दर्शकों को प्रोवाइड किए. सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक डॉक्टर कौस्तुभ सावी फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरैक्टिव, क्योंकि जितने भी सेशंस हुए हैं वो सेशंस का समय ज्यादा था, जो उसका सब्जेक्ट था, तो सवाल हम काफी ले नहीं पा रहे थे. आज के हमारे सेशन में आपने लगभग सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं. सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू वंस अगेन from Arogya Mandir and Utsav Institute. And also I would like to thank Sadhana Education Institute के LS Raheja College का, जो कि हमारे साथ आज से जुड़े हुए हैं. Thank you so much Principal Dr. Sarkar and Dr. Kulkarni Madam. Thank you so much. Thank you, Thank you, Milind.